students, we are starting with question number 8. Again, it is based on variable income security. Please remember, under variable income security, we never draw any timeline. We never try to calculate dividend for every transaction. There is no concept of X income for variable income security. But there are three important points. Please remember: calculation of right shares, bonus shares, and dividend. Okay. So we start with question number 8. On 1st April 2009, Mr. Vinay had 40,000 equity shares of rupees 10 each of Spectrum Limited, purchased at a cost of rupees 15 per share. On 1st May 2009, he purchased 10,000 equity shares of Satyam Limited, face value rupees 10 each at rupees 25 per share. On the same day, he also purchased 20,000 equity shares of Spectrum at rupees 12 each. स्टूडेंट देखो दो नाम आया, इक्विटी शेयर्स ऑफ स्पेक्ट्रम भी है और सत्यम भी है. On 1st July 2009, he sold 2,000 equity shares of Satyam at rupees 22 per share. Board of directors of Spectrum announced a right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 3 shares held at rupees 20 each. Full amount was payable by 31st August 2009. Shareholders were allowed to renounce their right either in part or full to outsider. Mr. Vinay renounced 40% of his rights at rupees 5 per share and subscribed for the balance. On 1st December 2009, Mr. Vinay sold 5,000 equity shares of Spectrum and 2,000 equity shares of Satyam at the rate of rupees 30 and rupees 27 per share respectively. Now be careful, you are required to prepare investment in equity shares of Spectrum Limited, investment in equity shares of Satyam Limited. So they are asking two accounts, students. अगर वहाँ नहीं भी लिखा होता, even if it is not said, we have to prepare two accounts. Simple reason, विनय ना दो कंपनी का उसने शेयर्स लिया है, स्पेक्ट्रम का और सत्यम का. So that is the reason we have to draw two different accounts, students. It is not allowed. जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. सपोज आई हैव सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ रिलायंस एज वेल एज आई हैव सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ टाटा. सो इन दैट केस ना स्टूडेंट्स आई can't draw only one account. I have to draw two separate accounts: investment in equity shares of Reliance, investment in equity shares of Tata. It is compulsory, students. When you purchase different investments ना, उतने number of accounts आपको बनाने पड़ेंगे. आपने 3 कंपनी का इक्विटी शेयर्स लिया है तो आपको 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा. 4 कंपनी का इक्विटी शेयर लिया है तो यू हैव टू ड्रॉ 4 सेपरेट अकाउंट्स. सो ऑब्वियसली एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा. हियर दे हैव आस्क्ड इन्वेस्टमेंट इन 2 डिफरेंट कंपनीज, इसके लिए 2 डिफरेंट अकाउंट बनाना है. दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट. रेस्ट ऑल एडजस्टमेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. उसमें कुछ नया नहीं है एडजस्टमेंट में. ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज मेनी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वी मेक, जितने कंपनी के शेयर्स हम लोग खरीदेंगे उतने अकाउंट हमको बनाने पड़ेंगे. यू परचेज शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, तो आपको 3 डिफरेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वाई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जेड. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस. ओके, सो वी स्टार्ट विद द अकाउंट नाउ. दे हैव सेड बुक्स ऑफ विनय. विनय ने सब परचेज वगैरह किया है. सो एट द टॉप विल राइट बुक्स ऑफ मिस्टर विनय. कौन कौन सी कंपनी का शेयर्स है? दे हैव सेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ स्पेक्ट्रम. पहला अकाउंट वही है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड. एंड सेकेंड हैव सेड, सेम पर्सन का बुक्स है, बुक्स ऑफ विनय. सेकेंड है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सत्यम लिमिटेड. सो 2 डिफरेंट उसके पास इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए हमने 2 डिफरेंट अकाउंट बनाया. बट स्टूडेंट्स अगेन, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में वी नेवर ड्रॉ द टाइम लाइन. वी डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, सो 1st April 2009, Vinay had means opening balance, 40,000 shares of Spectrum. Spectrum मतलब पहला अकाउंट. So 1st April 2009,
It's an opening balance, so to balance brought down. Mr. Vinay had 40,000 equity shares of ₹10 each. स्टूडेंट्स अभी देखो एक और चेंज मैंने क्या किया है. अभी तक वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी का जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, आई हैड रिकॉर्डेड फेस वैल्यू. सर्टन पीपल ना दे रिकॉर्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑल्सो, फेस वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे भी सॉल्व कर देता हूँ. ओके, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग फेस वैल्यू आई विल रिकॉर्ड नंबर ऑफ शेयर्स. तो स्टूडेंट्स हियर विल रिकॉर्ड नंबर ऑफ शेयर्स 40,000. प्लीज नोट, अगर ये फेस वैल्यू कॉलम है तो 40,000 इंटू 10 करेंगे तो विल गेट 4 लाख. बट एक क्वेश्चन में नंबर के बेसिस पे भी कर देता हूं. ओके, बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल हु इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग फेस वैल्यू फॉर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी दे रिकॉर्ड नंबर ऑफ शेयर्स. डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए तो हमेशा फेस वैल्यू लिखना. इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन होगा ना, कुछ लोग यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं, कुछ लोग नंबर भी लिखते हैं. सो अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए इक्विटी शेयर्स के, आई हैड रिकॉर्डेड फेस वैल्यू. टुडे आई एम रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स स्टूडेंट्स. ठीक है, सो 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 each of Spectrum purchased at a cost of 15. Dividend we never try to calculate. So 40,000 shares multiplied by 15, it comes to 6 lakh. So amount मिल गया हमको 6 lakh. So this was 1st April 2009. Second line of the question. 1st May 2009, he purchased 10,000 equity shares of Satyam. Satyam मतलब second account. And they are talking about purchase. Opening balance नहीं है students. Clearly they have used the term purchase. So 1st May 2009, we will record two bank account. Bank account. He purchased 10,000 shares. Again students, आज के दिन हम लोग face value record नहीं कर रहे हैं. Instead of that, I am recording number of shares. So he purchased 10,000 shares. Never try to calculate dividend. He purchased 10,000 equity shares of Satyam, face value 10 at ₹25 per share. So 10,000 into 25, it comes to 2,50,000. 2,50,000. So this was 1st May. So ध्यान रखना, सत्यम में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, it directly starts with a purchase transaction. आगे पढ़ते हैं. On the same day मतलब same 1st May. On the same day, he also purchased 20,000 equity shares of Spectrum. Spectrum मतलब first company. On the same day, 1st May 2009, he purchased. So two bank account. How many shares? 20,000 equity shares. Again students, today I am not recording face value, मैं सिर्फ number of shares record कर रहा हूँ. So he purchased 20,000 shares. Forget dividend. He purchased 20,000 shares at ₹12 each. So 20,000 multiplied by 12, it comes to 2,40,000. Okay. Next para. 1st July 2009, he sold 2,000 equity shares of Satyam. Satyam means the second account. और सेल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है. सेल वी ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सत्यम. सत्यम मीन्स सेकेंड अकाउंट. 1st July 2009, he sold. So by bank account. डिटेल्स के लिए पढ़ लो वहां पे. He sold 2,000 shares. Again today I am recording students number of shares. I am not recording face value. 2,000 shares of Satyam at the rate of 22 per share. Dividend हमेशा blank. So 2,000 multiplied by 22, it comes to 44,000 rupees. Okay, we never try to calculate dividend. But whenever there is a sale transaction, we find profit loss. Students, here I am recording. Working note number 1. Working note number 1. Profit loss is on 1st July 2009. Selling price minus cost price. Selling price 44,000 अभी हमने फाइंड किया था. They will never give us cost price. Cost price के लिए हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं. Face value of investment sold upon total face value debit minus credit into cost debit minus credit. To find cost price, we follow this formula. Face value of investment sold upon total face value debit minus credit into cost debit minus credit. Face value of investment sold. Students, अच्छा sorry गलती हो गई students, I am really sorry.
instead of face value I will write number, because today we are recording number na, number of investment sold upon total number. Students, I'm really sorry, please ध्यान से. Today instead of face value I am recording number of shares. तो मैंने फॉर्मूला में जस्ट इतना चेंज किया है, कंसेप्ट टेक्निक चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, दैट विल रिमेन सेम. इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू आई एम रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड upon total number, debit minus credit, into cost, debit minus credit. So number of shares sold, number of investment sold, numerator में आ जाएगा 2000. Here I am continuing, वो working note यहाँ से यहाँ पे, okay? Upon total number मतलब ये column, debit total करो. He has sold shares of Satyam, so 10,000. Go to the credit side number column, ignore current sale. Above that कोई transaction है? No, so 0. Same way cost, take the debit total 2,50,000. Sorry, 2,50,000. Okay, go to the credit side. ये 44,000 current sale ignore करो. Above that any amount? No, so minus 0. Yeah, I'm writing minus 0. So 2,000 upon 10,000 into 2,50,000. 2,000 divide by 10,000 into 2,50,000. So 50,000 is the cost price. So we get 50,000 cost price. That means there is a gain of 6,000. All gains are credited to P&L. P&L credit, so investment account debit. Same date जिस दिन हमने सेल किया. To profit and loss account. Working note number 1. Forget face value. Forget number. Forget dividend. 6,000 is the gain. So we'll record gain. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट यहाँ ध्यान रखना, मैंने मिस्टेक से फेस वैल्यूज लिख दिया था. इंस्टेड इट इज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल नंबर. ओके, इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू टुडे वी आर रिकॉर्डिंग नंबर. ओके, फेस वैल्यू भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी. ओके, सो दिस वाज 1 जुलाई. नाउ दैट पैरा, नेक्स्ट लाइन देखो फिर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब फर्स्ट अकाउंट की बात कर रहा है. Board of Directors of Spectrum Limited announced the right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 3 shares held. तो right shares की बात हो रही है स्टूडेंट्स. Working note number 2. They are talking about right shares. Working note number 2. Right shares held. How many right I will get? What is the number which I will get? Board of Directors of Spectrum announced right issue of equity shares in the ratio of 1 for every 3 shares held. जिसके पास 3 शेयर है उसको एक right share मिलेगा. So I need number of shares held. ये already number column है, face value column नहीं है. 40,000 plus 20,000. So total number of shares held in Spectrum is 60,000. Cross multiply, you will get the answer. 60,000 into 1 upon 3, so we get 20,000. Students, अगर आपको याद हो, once again I will explain. Suppose he subscribed all 20,000 shares. So in this account we will write to bank account. कितने shares उसने right shares मिल रहे हैं उसको? 20,000. So number of shares 20,000 dash. And at what price they have said? Right shares in the ratio of 1 for 3 shares held at rupees 20. So 20,000 multiplied by 20 is 4 lakh. So here we'll record 4 lakh. If Vinay purchase all the right shares, then this is the correct answer. Whereas students उसने सारे shares purchase नहीं किए. देखो next time में क्या लिखा है. Full amount was payable by 31st August. Shareholders were allowed to renounce their right either in part or full to outsider. Mr. Vinay renounced 40% of his rights. उसने renounce कितना किया? 40%. Clearly they have mentioned. Renounced. 20,000 multiplied by 40% is equal to 8,000 shares he renounced. And balance क्या किया? And subscribed for the balance. Subscribed balance. So अगर 40% renounce किया है, so balance will be 60%. So 20,000 into 60% will be 12,000. So renounce हमेशा P&L credit में जाता है. Subscribe goes to investment account. So that is the reason this answer is wrong.
So we have to rectify that answer. ठीक है, इसके लिए मैं पहले पेंसिल से रिकॉर्ड करता हूँ. All the past questions ना वेरिएबल इनकम के राइट शेयर्स मैंने हमेशा ऐसे किया है. First I used to record with pencil, to explain. If he subscribes all the shares, this is the answer. But उसने सारे shares subscribe नहीं किया. He has renounced certain shares. So जो renounce किया वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो P&L में जाएगा. So please, I will change the answer now. Okay, so he has subscribed how many shares? 60% of the shares. Full amount was payable by 31st August. So 31st August 2009 to bank account. Number of shares 12,000. आज मैंने number column बनाया है students. Forget dividend. What is the price? Full amount is paid. And he on 1st July 2000, Board of Directors of Spectrum announced right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 3 shares held at rupees 20 each. So 12,000 multiplied by 20. So it comes to 2,40,000. Okay. Renounce कहाँ जाता है हमेशा P&L. So we draw small profit and loss account. एक छोटा P&L account बनाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, और उसका क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट. $8,000 शेयर्स रिनाउंस किया, मल्टीप्लाई बाय, वहां पे लिखा था मिस्टर विनय रिनाउंस्ड 40% of his right at ₹5 per share. So 8,000 into 5 will be 40,000. Okay, so whenever right shares का calculation करोगे, if all the shares are subscribed, तो यहाँ 20,000 number of shares multiply by 20 करना. Okay, but he has renounced 40%. So जो renounce किया P&L credit, जो shares subscribed किया were recorded in investment account. Okay. So this was right shares. Next students. On 1st December 2009, Mr. Vinay sold 5,000 equity shares of Spectrum. Spectrum मतलब first account. On 1st December 2009. 1st December 2009 by bank account. He sold how many shares? 5,000 equity shares of Spectrum. So मैं यहाँ number लिख रहा हूँ, face value नहीं. Forget dividend. कितने में बेचा? Over there there's 5,000 equity shares of Spectrum at the rate of 30. 5,000 multiplied by 30. It comes to 1,50,000. Whenever sale transaction is given, calculation of profit loss is compulsory. So students, here I am making that working note number 1, 2. This is 3. Profit loss is on. What is the date? 1st December 2009. Selling price minus cost price. Selling price हमें पता है 1,50,000. Cost price we don't know, so we'll apply weighted average का formula. Number of investments sold upon total number debit minus credit into cost debit minus credit. Today instead of face value we are solving the question based on variable income security based on number students. ठीक है, चाहे number लो face value लो, answer same आता है. Okay, so we'll follow the same formula. I am substituting just the values to get the answer. मैं भी formula वापस नहीं लिख रहा हूँ. Number of investments sold 5,000. Here I am recording 5,000. Number of investments sold. Total number 40 plus 20, 60 plus 12, 72,000. Go to credit side. Ignore current sale. Above that कोई amount है? No. So minus 0 into 6 lakh plus 2,40,000 plus 2,40,000. So it comes to 10,80,000. ये total आएगा 10,80,000. 10,80,000. Go to credit side. Ignore 1,50,000. Above that कोई amount है? नहीं, तो minus 0. So solve this. 5,000 divided by 72,000 into 10,80,000.
It comes to 74,999.99. That means 75,000 students. So it is 75,000 cost. So there is a huge gain of 75,000. All gains are credited to P&L. So investment account debit होगा 1st December 2009 to profit and loss account. Working note number 3. Only under cost column we write 75,000. Okay, same sentence वापस पढ़ो. 1st December when I sold 5,000 shares of Spectrum, that we have done, and 2,000 equity shares of Satyam. 1st December को उसने सत्यम के भी shares बेचे हैं. So second account में सत्यम के account में credit side by bank account. How many shares? 2,000 shares at the rate of 27. So number of shares 2,000 multiplied by 27. So it comes to 54,000. Whenever there is sale, we find profit loss. So students मैं यहाँ लिख रहा हूँ working note number 4. Profit loss is on 1st December 2009. Again, selling price minus cost price. Selling price हमें पता है 54,000. Cost price not given. Follow weighted average. Number of investments sold upon total number into cost. Debit minus credit, debit minus credit. Okay. So number of investments sold 2,000. Number of shares sold, number of investments sold 2,000 upon debit total. हम लोग ये वाला transaction ये देख रहे हैं this account. Debit total करेंगे तो total is 10,000. Go to the current credit side. Current sale ignore करो. Above that है कुछ number? Yes, 2,000 है ना, तो minus करो. Multiply by cost. 2,50,000 plus 6,000 will be 2,56,000. Ignore current sale. Above that कोई amount है? Yes, 44,000. So minus 44. मैंने यहाँ पे लिखा है minus 44. So solve this. 2,000, 10,000 minus 2,000 is 8,000. 2,56,000 minus 44,000 will be 2,12,000. मैंने नेट आंसर्स बताए आपको. 2,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू ये माइनस करोगे तो 2,12,000 आएगा इंटू 2,12,000. इट कम्स टू 53,000 स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस. सो 54 माइनस 53,000 का गेन होगा. ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड टू P&L. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 1st December 2009 to profit and loss account. Working note number 4. This working note. So 1,000 is the gain. That's all. There is nothing else. So now we'll start closing the account. Account close करना है हमको. पहला face value दोनों account close करना है. 40, 20, 72,000. Same number will record here 72. बैलेंस फिगर फाइंड करना है. 31st March 2010 by balance carried down 72 and this is 5, so this should be 67,000. डिविडेंड कॉलम में देखो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. डिविडेंड कॉलम में कुछ भी नहीं है. फाइनली कॉस्ट कॉलम 6 lakh plus 2,40,000 plus 2,40,000 plus plus 75. 11,55,000. 11,55,000. 11,55,000. Now fine. अच्छा, if they give us market price कहीं दिया है क्या? If they give us market price, then cost price or market price, whichever is less. It's not given. So finally balance sum figure minus 1,50,000. So it comes to 10,05,000. 1,005,000. So these two are the balance sum figure. ये balance sum figure है. Please note market price नहीं दिया है. Market price देगा तो follow that concept. Cost price or market price, whichever is less. Same way, close this account. 10,000 नंबर. सेम नंबर यहाँ पे लिख लेंगे एंड जस्ट फाइंड द बैलेंस फिगर. 31st March 2010 by balance carried down. 10,000 minus 4 is 6,000.
डिविडेंड में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड यू कैन रेफर, पहले हमेशा क्रेडिट टोटल करते हैं ना, नथिंग इज गिवन, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया तो डिविडेंड भूल जाओ। 250, 56, 2,57,000 टोटल, so same total will record here 2,57,000। अगेन मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो जस्ट फाइंड बैलेंस फिगर, 2,57,000 माइनस 44 माइनस 54, so balance figure is 159,000। so this was the final answer for this question। ये balancing figure है, this is also a balancing figure। okay, so important point क्या था स्टूडेंट्स, ये विनय ने ना दो कंपनी का इक्विटी शेयर्स लिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव ड्रॉन टू सेपरेट अकाउंट्स, दोनों साथ में नहीं बना सकते, इट्स नॉट अलाउड। जितने नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप 3 कंपनी का इन्वेस्टमेंट लोगे ना, शेयर्स लोगे, डिबेंचर लोगे, बॉन्ड्स लोगे, तो आपको 3 सेपरेट अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। 4 कंपनी का है तो 4, 10 कंपनी के आपने शेयर्स अलग अलग खरीद के रखे हैं, सो 10 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दे हैड आस्क्ड दिस वन, 2 अकाउंट का तो पूछा है उन्होंने। सो विनय ने 2 कंपनी का शेयर्स लिया, एक स्पेक्ट्रम का, एक सत्यम का, तो हमने 2 सेपरेट अकाउंट्स बनाए। बट एज फार एज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, टेक्निक, फॉर्मूला बाकी सब सेम है। हाँ, एक चेंज मैंने आज क्या किया, instead of face value today we had recorded number of shares। पास जो भी क्वेश्चन मैंने वेरिएबल इनकम के किए थे, देखो स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू, जो भी वेरिएबल का था फेस वैल्यू फेस वैल्यू, मैंने हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड किया, फेस वैल्यू फेस वैल्यू। wherever we did equity shares का क्वेश्चन we recorded face value just आज मैंने क्या किया, instead of face value I recorded number। simple reason, there are certain people who record number instead of face value। तो अगर कभी आपके कॉलेज के प्रोफेसर नंबर लिखेंगे तो नो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, आप फेस वैल्यू लिखो या नंबर लिखो, फाइन जो आंसर्स होंगे आपके वो प्रॉफिट लॉस के आंसर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो सब सेम होगा स्टूडेंट्स। ओके, so we can have number column, in place of that we can have face value column also। so this was the solution for question number 8। students we are starting with now question number 9 students। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कैसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का, एक वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वेरिएबल इनकम का एग्जांपल क्या था, इक्विटी शेयर्स। अभी ये जो क्वेश्चन है ना कॉम्बिनेशन है, इसमें फिक्स्ड इनकम के भी एडजस्टमेंट्स है और वेरिएबल, मतलब दोनों साथ में पूछा है। So because of that reason we have to draw separate 2 accounts। ये ऊपर जो मैंने बनाया है ये फिक्स्ड इनकम का होगा, और नीचे जो सेकेंड अकाउंट है ना, द सेकेंड वन, दिस इज फॉर वेरिएबल इनकम। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था, जितने आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदोगे ना स्टूडेंट्स डिफरेंट कंपनीज के, सो उतने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सेम वे आप डिफरेंट कैटेगरीज के अगर इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, मतलब डिबेंचर्स लिया, बॉन्ड्स लिया, इक्विटी शेयर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो डिबेंचर का अकाउंट अगर अलग बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग बनाना पड़ेगा, बॉन्ड्स अलग बनाना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स अलग बनाना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी, यू कैन मिक्स अप ऑल द ट्रांजैक्शंस इन वन अकाउंट, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो जितनी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट होंगे उतना आपको अकाउंट्स बनाना पड़ता है, डिफरेंट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट होंगे तो उतने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सो हियर वी हैव बॉन्ड्स, उन्होंने बॉन्ड्स का एडजस्टमेंट दिया है, और इक्विटी शेयर का। सो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर इज वेरिएबल। तो पहला अकाउंट जो है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का है, और दूसरा अकाउंट वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी का है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट तो मैं पूरा क्वेश्चन एंटायरली आई विल रीड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, विल सेलेक्ट only those transactions which are related to bonds। पहले वो bonds का पूरे transaction रिकॉर्ड कर लेंगे, will close that account। वो जब क्लोज हो जाएगा ना, then I will start again reading the question। फिर जो शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है that I will read and I will record here। so again पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पहले बॉन्ड्स का जो पार्ट है ना उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। once that is done including closing the account, वो पूरा हो जाएगा ना, then once again we'll go through the question। फिर शेयर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, those adjustments shall be recorded। Following transactions of Mr. Narayan took place during year ended 31st March 2014। 1st April 13 purchase rupees 12 lakh 8% debentures, instead of bonds it's a debenture, sorry, 8% debentures at rupees 80.5
कम इंटरेस्ट. याद है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में कंसेप्ट होता था एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, सो बी केयरफुल. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1st November and 1st May every year. Face value of each debenture is rupees 100. 12th April 2013, purchase 1 lakh equity shares of rupees 10 each in X Limited for rupees 40 lakh. 1st May, received half year's interest on 8% bonds. 15th May, X Limited made bonus issue of 3 equity shares for every 2 shares held. 15th June, Mr. Narayan sold 1,25,000 bonus shares of rupees 20 each. 1st October 13, sold rupees 3 lakh 8% debentures at rupees 81 X interest. 1st November 13, received half year's debenture interest. 1st December 2013, 1st December 2013, 20% of the debentures were converted into equity shares. 1st December 2013, 20% of debentures were converted into equity shares of X Limited. Prepare 8% debentures account and equity shares in X Limited account in the books of Mr. Narayan. तो उसने स्टूडेंट्स डिबेंचर्स और शेयर्स उसने कंपनी के खरीद के रखे. सो वी हैव टू ड्रॉ 2 सेपरेट अकाउंट्स. 2 सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे. बुक्स ऑफ मिस्टर नारायण, first one is 8% debentures in X Limited account. And he has also purchased equity shares in X Limited account. $8 debentures in X Limited, equity shares in X Limited. अच्छा स्टूडेंट्स, once again what we'll do first, पहले debentures के सारे transaction record करेंगे और account close भी कर लेंगे. Then we'll think what to do. Now for fixed income security, debentures, bonds, government security, आपको याद हो तो we used to draw a timeline. तो पहले timeline बनाना पड़ेगा. So start करते हैं beginning से. Following transactions of Mr. Narayan took place during year ended 31st March 14. 1st April 13 purchase. स्टूडेंट देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पहला जो स्टार्ट हो रहा है ना वो परचेज से स्टार्ट हो रहा है. तो 1st April 13 they have given us purchase transaction. 1st April 13 is a purchase transaction. Purchase rupees 12 lakh 8% debentures at 80.5 cum interest. Interest is payable on 1st November and 1st May every year. Then 12th April दिया है next transaction students, but वो equity shares से related है. I'm concerned with debentures. 1st May received half year's interest. April के बाद they are saying next transaction May में है और उसको interest मिला है. 1st May 13. It's an interest transaction. Next और आगे पढ़ते हैं. 15th में वो bonus issue of shares की बात है. I'm concerned with debentures, not shares. 15th June Mr. Narayan sold bonus shares. भूल जाओ उसको. 1st October, directly October, sold 8% debentures. Debentures बेचा students अक्टूबर के महीने में. 1st October 13, it's a sale transaction. Then students, 1st November received half year's debenture interest. क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ना साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट मिलेगा. 1st May, 1st November. बिगिनिंग में देखो फर्स्ट लाइन में था इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1st November and 1st May. So 1st November 13 there will be a interest transaction. Then students, 1st December 20% of debentures are converted into equity shares. ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. 20% of debentures are converted. Clearly they have used the term converted. तो स्टूडेंट्स 1st December 13 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CONV converted. ओके. लास्ट फाइनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31st March. So 31st March को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देंगे. तो स्टूडेंट्स हियर आई एम एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन.
31st March 14 is accounts closing. So these are the transaction which we have to record in this account. अगर आपको याद आया हो, we used to extend the timeline on left hand side students. हम लोग left hand side पे timeline extend किया करते थे, तो again और decide करते थे last interest कब मिला है. As per the adjustment they have said, first line interest is payable on 1st November and 1st May. April से पहले March, March is not the interest date. March से पहले Feb, Feb is not the interest date. Feb से पहले Jan, Jan is not the interest date. Jan से पहले December is not the interest date. December से पहले 1st November. So 1st November 2012 was the last interest date. Okay, so this was the way we used to solve question based on fixed income security. तो पहले हमने timeline बना के सब transaction arrange कर लिए. We extended the timeline to get the last interest date. अब start करते हैं posting से. ये dotted line वाला transaction is never posted in this account. We start with 1st April और वो purchase transaction है. Students, they have clearly said it's a purchase transaction. 1st April 13 to बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स. ठीक है, परचेज कहा था उन्होंने, वहां पे देखो क्या लिखा है, परचेज ₹12 लाख. तो फेस वैल्यू हमें पता चल गया 12 लाख. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपल्सरी. अगर आपको याद आया हो तो स्टूडेंट्स. ओके, सो हियर आई एम रिकॉर्डिंग वर्किंग नोट नंबर 1. इंटरेस्ट इज ऑन 1st April 13. 12 lakh is the rate of interest. Sorry, 12 lakh is the face value. Rate of interest is 8%. Number of months चाहिए. We go to the timeline. This is the transaction we are considering. 1st April से पहले last interest कब मिला था? 1st November. So November, December, Jan, Feb, March. 5 months हो जाएगा. So 5/12. 1st November से 1st April is 5 months. So 12 lakh multiply by 8% into 5 divide by 12. It comes to 40,000. So interest होगा 40,000. This is done. आगे पढ़ो. Purchase ₹12 lakh 8% debentures at 80.5 कम interest. जब भी कम interest price दिया होता है, we convert it into X interest. So they have given us कम interest price. कितना बोला? 80.5. Face value is 12 lakh into 80.5%. याद आया आपको? 12 लाख into 80.5%. So 9,66,000 is कम interest price. But deduct interest from this. Interest कितना है? 40,000. So 9,66,000 minus 40,000. It will be 9,26,000. So X interest price we got. X interest price 9,26,000. So 12 lakh face value. उसका इंटरेस्ट फाइंड किया. वर्किंग नोट नंबर 1 8%. 1st November से 1st April 5 months. So we recorded 40,000. Price given to us is come interest. So 12 lakh face value into 80.5%, 9,66,000 minus interest. अभी कैलकुलेट किया था 40,000 year. That we subtracted, so we get X interest price 9,26,000. स्टूडेंट्स ऐसा हम लोग मार्क कर लेते थे. 1st April ट्रांजैक्शन डन. 1st में इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन. इंटरेस्ट इन्वेस्टर के लिए इनकम होता है. सो 1st May 2013 बाय बैंक अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 2. फॉरगेट फेस वैल्यू, फॉरगेट अमाउंट. वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन इंटरेस्ट. तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Working note number 2. Interest is on 1st May 2013. Interest. What we used to do, हम लोग देखते थे हमारे अकाउंट में बैलेंस है क्या. बैलेंस है क्या का मतलब क्या था? What does that means? Refer the face value column. So 12 लाख है हमारे पास. So 12 लाख. 8% is the rate of interest. So 8/100. Number of months के लिए timeline. This is the transaction we are recording. 1st May. Last interest कब मिला था? 1st November. Count from 1st November till 1st May. Exactly 6 months होगा. December, Jan, Feb, March, April तक count करो. November, December. That's 1st November ना. So November, December, Jan, Feb, March, April. 6 months. 1st November से 1st May. 6 months. So 12 lakh into 8% into 6 divided by 12. It comes to 48,000. So यहाँ पे interest
48,000. Okay, so we have completed, we have recorded this transaction also. 1st October there is a sale transaction. 1st October 13, again by बैंक अकाउंट. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं. 1st October सोल्ड ₹3 लाख 8% डिबेंचर्स. सो ये 3 लाख मीन्स फेस वैल्यू. स्टूडेंट्स, जो अमाउंट परसेंटेज से पहले होता है 8% से जो पहले अमाउंट है दैट इज कंसिडर्ड एज फेस वैल्यू. सोल्ड ₹3 लाख 8% डिबेंचर्स. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपल्सरी. हियर आई एम रिकॉर्डिंग वर्किंग नोट नंबर 3. इंटरेस्ट इज ऑन 1st October 13. इंटरेस्ट किस पे होता है? फेस वैल्यू पे, विच इज 3 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, सो 8 अपॉन 100. नंबर ऑफ मंथ चाहिए. दिस इज अ ट्रांजैक्शन वी आर रिकॉर्डिंग 1st October. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मई में स्टूडेंट्स. 1st May से 1st October. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो 5 months. टिल सितंबर काउंट करना बिकॉज दिस इज 1st October. So we'll start from November, December, Jan, Feb, March. I'm sorry. No, yeah. May. 1st May till 1st October. I'm sorry. First. So May, June, July, August, September. 5 months. 3 lakh into 8% into 5 divided by 12. It comes to 10,000. Price देखो वहां पे क्या लिखा है? At ₹81 x interest, good for us. 3 lakh face value into 81%. It comes to 2,43,000. Okay. So up till here done. Whenever there is sale transaction, we find profit loss. So यहाँ पे मैं कर रहा हूँ working note number 4. Profit loss is on 1st October 13. यहां पे एक्स और कम का कंसेप्ट होता था. सो एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स हमें पता है 2,43,000. कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सो अप्लाई वेटेड एवरेज. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू, डेबिट माइनस क्रेडिट अगर आपको याद हो तो, इनटू कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये फेस वैल्यू है 3 लाख. हियर आई एम रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स 3 लाख अपॉन टोटल फेस वैल्यू. एक ही ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स 12 लाख. इग्नोर करंट सेल, अबाउट दैट कोई अमाउंट है 0. मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 9,26,000. स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेस नहीं है. 9,26,000. Okay. Ignore current sale. Above that there is no amount. So 9,26,000 minus 0. So 3 lakh divide by 12 lakh into 9,26,000. So it comes to 2,31,500. So selling price 243 minus 231,500. So there is a gain of 11,500. All gains are credited to P&L. So investment account debit 1st October 13 to profit and loss account. Working note number 4. Forget, and here we'll record 11,500. So X interest selling price we know 2,43,000. यहाँ पे दिया था 3 lakh into 81%. We got this answer. कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो अप्लाई दैट फॉर्मूला. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. ओके. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड स्टूडेंट 3 लाख. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 लाख न्यूमरेटर में अपॉन टोटल फेस वैल्यू. सो डेबिट टोटल करेंगे, एक ही ट्रांजैक्शन है 12 लाख. इग्नोर द करंट सेल, अबाउट दैट कोई अमाउंट है नहीं, सो माइनस 0. मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, कॉस्ट को टोटल करो, ये तो अभी लिखा. एक ही ट्रांजैक्शन था 9,26,000, सो इंटू 9,26,000 है वो 926,000. इग्नोर करंट सेल, अबाउट दैट कोई अमाउंट है नहीं तो माइनस 0. सो सॉल्व दिस.
यू विल गेट 2,31,500 गेन आया, गेन मैंने यहाँ पे लिखा, P&L क्रेडिट होगा, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन सेल का भी ट्रांजैक्शन हो गया, ये 1 अक्टूबर का। देन 1 नवंबर दे हैव सेड इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट हमेशा इन्वेस्टर के लिए इनकम होता है, सो यहाँ पे लिखेंगे 1 नवंबर 13 बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5 होगा, फॉरगेट वी आर कंसर्न विद इंटरेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे वर्किंग बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट इज ऑन 1 नवंबर 13। कैसे डिसाइड करते हैं? देखो हमारे पास बॉन्ड्स डिबेंचर्स हैं कि नहीं, है ना, 12 लाख का लिया था, हमें परचेज किया था, बट स्टूडेंट्स बिफोर 1 नवंबर ऑलरेडी कुछ बॉन्ड्स हम लोग बेच चुके हैं, तो इसका इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, हमने बहुत 9-10 क्वेश्चंस किए हैं, 9 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, असाइनमेंट्स में भी यू हैव डन सम क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन। सो 12 लाख आपने परचेज किया, 3 लाख का बेच दिया, सो यू कैन रिसीव इंटरेस्ट ओनली ऑन 9 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। नंबर ऑफ मंथ चाहिए, टाइमलाइन देखो, हम इंटरेस्ट इस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं 1 नवंबर, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मई, सो 1 मई से 1 नवंबर काउंट करो, यू विल गेट 6 मंथ्स, सो 9 लाख इंटू 8% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 36,000। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन दिस ट्रांजैक्शन ऑल्सो, इंटरेस्ट भी हो गया। नेक्स्ट का इन्होंने 1 दिसंबर कन्वर्टेड, वहां पे मैंने कहा था 1 दिसंबर 2013 20% of debentures are converted into equity shares of X Limited। debentures उसने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कन्वर्ट किया। debentures किस में कन्वर्ट हो गया? इक्विटी शेयर्स में। ये जो debentures है ना, it is converted into equity shares। अगेन आई रिपीट, debentures are converted to equity share, मतलब debentures यहां से कहां जा रहा है? इक्विटी शेयर्स में। सो स्टूडेंट्स debentures जा रहा है ना, बाहर जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो डिबेंचर्स में तो क्रेडिट होगा स्टूडेंट्स वो, सो विल रिकॉर्ड इट ऑन क्रेडिट साइड। डिबेंचर्स में क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट आई हैव गिवन 1 December, सो 1 December 2013 आई विल राइट बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट, यहां से यहां जा रहा है, बिकॉज दे हैव सेड डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जो आपके पास डिबेंचर है ना, आपको उसको कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में, सो डिबेंचर्स आर मूविंग आउट, सो इसके लिए क्रेडिट किया। जैसे हम सेल करते हैं, सेल का मतलब क्या? डिबेंचर्स गया ना, तो भी क्रेडिटेड। सेम वे डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन डिबेंचर्स हमारे हाथ से गया, उसके बदले में इक्विटी शेयर्स मिला, सो डिबेंचर्स आर गोइंग आउट, मूविंग आउट, सो इसके लिए डिबेंचर्स क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट। भूलना नहीं, इसका सेकेंड इफेक्ट यहां पे आएगा स्टूडेंट्स। वर्किंग नोट नंबर कितने डिबेंचर्स उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स? 20%। सो वर्किंग नोट नंबर 6, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन कितना बोला उन्होंने? 20% ना, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो अगेन, कितने डिबेंचर स्टार्टिंग में मेरे पास फेस वैल्यू का था? 12 लाख, बट 3 लाख का तो ऑलरेडी बेच चुका हूं, तो अभी मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स? खाली 9 लाख है ना, सो उसका 20%, सो 9 लाख इंटू 20% करोगे, यू विल गेट 1,80,000। ये फेस वैल्यू वाइज हो गया 1,80,000 स्टूडेंट्स, ओके। सो 1,80,000 फेस वैल्यू। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट, सो स्टूडेंट्स यहीं पे मैं कर देता हूं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। 9 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। नंबर ऑफ मंथ चाहिए ना, 1 दिसंबर, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 1 नवंबर, सो 1 नवंबर से 1 दिसंबर करोगे ना तो 1 मंथ आएगा, सो 1/12। 9 लाख इंटू 8% इंटू 1/12, 9 लाख इंटू 8% डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 6,000। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज वी आर डूइंग द फर्स्ट टाइम दिस एडजस्टमेंट। डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या है ना, एक्सचेंज हो रहा है। मैं नारायण ना डिबेंचर्स कंपनी के पास लेके जाएगा, सरेंडर कर देगा, उसके बदले में इक्विटी शेयर मिलेगा। सो डिबेंचर्स आर मूविंग आउट, इसके लिए डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट और इक्विटी शेयर्स डेबिट होगा। कितना परसेंट उन्होंने कहा है? 20% ना स्टूडेंट्स, तो जो भी फेस वैल्यू बचता है, ये 12 लाख है, उसमें से 3 लाख आप बेच चुके हैं, तो बचा कितना? 9 लाख। 9 लाख का 20% वी गेट 1,80,000। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपल्सरी, तो ये 1,80,000 का स्टूडेंट, सॉरी इंस्टेड ऑफ 1,80,000 का मैंने 9 लाख का फाइन कर दिया। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, जितना फेस वैल्यू लिखते हैं उसी का इंटरेस्ट फाइन कर देना। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट। 1,80,000
into 8% into 1 divided by 12. It comes to 1200 students. मुझसे गलती हुई, I'm sorry, it is 1200. So interest amount is 1200. This is 1 and 2, 1200. It was my mistake. Interest is always calculated on face value. Face value 1,80,000 था, मैंने गलती से यहाँ 9 लाख लिखा था, so I made the change. So once again, ये 9 लाख कैसे आया? 12 लाख माइनस जो बेच दिया, सो बचा 9 लाख. 20% कन्वर्ट करना है, सो 9 लाख इंटू 20% इज 1,80,000. ये 1,80,000 का इंटरेस्ट फाइंड किया, सो वी गेट 1200. अभी स्टूडेंट्स कॉस्ट भी ऐसे ही करेंगे. देखो कॉस्ट कितना है, 9,26,000 प्लस 11,500, ओके, माइनस 2,43,000. सो कॉस्ट बचता है 6,94,500. इसका 20%, इसका 20% आएगा 1,38,900. अगेन आई विल एक्सप्लेन. जैसा मैंने फेस वैल्यू का किया, 12 लाख माइनस 3 लाख 9 लाख, 9 लाख का 20%. सेम वे डेबिट टोटल कर लेंगे, 9,26,000 प्लस 11,500 माइनस 2,43,000. सो हमारे पास कॉस्ट बचा इतना, इसका 20%, सो वी गेट 1,38,900. इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, बाद में लिखते हैं. सो दिस वाज 1 December. Debentures are converted into equity shares. Now finally we have to close the account. अभी अकाउंट हमको क्लोज करना है स्टूडेंट्स. सो स्टार्ट करते हैं टोटल करना. पहला फेस वैल्यू. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक मिनट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहीं मंथ्स में गड़बड़ तो नहीं है, बिकॉज दिस इज 1 November ना. 1 November से 1 April, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. सो 5/12. और इंटरेस्ट कहाँ पे था, फर्स्ट में 1 November is 6 months, दैट इज करेक्ट. सेल 1 October था, सेल वेर बी रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन 1 October. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 months करेक्ट था. और कहाँ पे था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इट वॉज ईयर, इट वॉज 1 November, 1 May, 6 months करेक्ट था. देन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1 December, 1 ओके, ऑल कैलकुलेशंस आर करेक्ट. ओके, यहाँ मैंने खाली मिस्टेक करती, ध्यान रखना. इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन 1,80,000 आई मेड अ कैलकुलेशन ऑन 9 लाख. बाद में मैंने चेंज किया. ओके, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दिस फेस वैल्यू. जो फेस वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं उसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. सो 1,80,000 का फाइंड करना है, नॉट ऑफ 9 लाख. सो नाउ विल क्लोज द अकाउंट. डेबिट टोटल फेस वैल्यू इज 12 लाख. सेम टोटल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 12 लाख, और बैलेंस हम फिगर फाइंड कर लेंगे. 12 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,80,000, इट कम्स टू 7,20,000. ये बैलेंस फिगर है. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट 7,20,000 का. तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग नोट नंबर क्या हो गया हमारा, 7 हो जाएगा. हियर आई एम रिकॉर्डिंग वर्किंग नोट 7. इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8%. 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं. लास्ट इंटरेस्ट का मिला था 1 November. सो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च भी काउंट होगा बिकॉज दैट इज 31 मार्च. सो 5/12. सो वर्किंग नोट 7 है. 7,20,000 इंटू 8% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 24,000. फिर इंटरेस्ट कॉलम हम लोग क्लोज करते हैं. 24 प्लस 48 प्लस 10,000 प्लस 36,000 प्लस 1,200. सो इट कम्स टू 1,19,200. 1,19,200. सेम टोटल वी रिकॉर्ड ईयर. ऐसे हम लोग क्लोज करते थे. एंड वी जस्ट फाइंड द बैलेंस फिगर. -40 कर देते हैं, तो बैलेंस फिगर आ जाएगा 79,200. दिस विल ऑलवेज गो टू P&L account. So profit and loss account 31st March 14 to profit and loss. अभी आ जाओ लास्ट, ये बचा हमारा 9,26,000 plus 11,500. It comes to 9,37,500. सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 9,37,500. Students, if they give us market price, then make comparison cost price or market price, whichever is less. Students, यहाँ पे market price नहीं दिया है आपको. लास्ट में जस्ट बोला prepare 8% debentures account equity shares in the books of Narayan for year ended March 14. There is no market price, so just find balance and figure. 9,37,500 minus 2,43,000 minus 1,38,900. It comes to 555
600. सो स्टूडेंट्स जो जो बैलेंसिंग फिगर है मैं उसको सर्कल कर देता हूँ. दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये लास्ट वाला आंसर भी बैलेंसिंग फिगर. ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, दे हैव सेड कि ये नारायण ने दो तरह की इन्वेस्टमेंट लिया. एक 8% डिबेंचर्स लिया एक्स लिमिटेड में, और इक्विटी शेयर्स भी एक्स लिमिटेड का. ऑल्दो दोनों इन्वेस्टमेंट है एक्स लिमिटेड का, बट आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है. ओके, क्योंकि ये डिबेंचर्स है, इक्विटी शेयर है, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, तो आप सेम अकाउंट नहीं बना सकते. सो आई हैव ड्रॉन 2 सेपरेट अकाउंट्स. ठीक है, देन मैंने टाइमलाइन बनाया और सिर्फ डिबेंचर्स के ट्रांजैक्शन पे कॉन्सेंट्रेट किया, और वो सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए. हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, टेक्निक में, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं है. ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कन्वर्जन का जो ट्रांजैक्शन है, 1 December 20% ऑफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. सो 1,80,000 कैसे आया स्टूडेंट्स? 12 लाख माइनस 3 लाख जो हमने बेच दिया, तो 9 लाख बचा था. 9 लाख का 20% फाइन किया तो वी गॉट 1,80,000. वो 1,80,000 मैंने यहाँ पे लिखा है. देन इसी 1,80,000 का इंटरेस्ट फाइन किया, 1,80,000 इंटू 8% इंटू 1/12, बिकॉज दिसंबर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. लास्ट इंटरेस्ट नवंबर में मिला था, 1 नवंबर 1 December इज 1 month, सो वी गॉट 1,200. ये 1,38,900 कैसे आया स्टूडेंट्स? 9,26,000 प्लस 11,500, इट कम्स टू 9 लाख. मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, कहीं पे स्पेस होगा तो आई विल रिकॉर्ड इट डेफिनेटली. मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ. वो कन्वर्जन का देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज नोट कन्वर्जन वेयर आई एम रिकॉर्डिंग. और कॉस्ट की बात कर रहा हूँ. व्हाट आई डिड, 20% किसका? ये पहला टोटल किया, सो वी गेट 9,37,500, और उसमें से ये माइनस 2,43,000 किया. सो 9,37,500 इज अ टोटल, माइनस 2,43,000. So we got this answer. फिर इसका 20% is converted, so I got 1,38,900. यहाँ पे स्टूडेंट कन्वर्जन कॉस्ट कॉलम कैसे आया ये? कन्वर्जन फेस वैल्यू कैसे आया? 12 लाख माइनस 3 लाख इज 9 लाख, 9 लाख इंटू 20%. कॉस्ट कैसे आया? टोटल करो, माइनस 243, उसका 20%, so you got 1,38,900. So this was the only new adjustment for us. भूलना नहीं, यहाँ हमने लिखा बाय इक्विटी शेयर, so सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेफिनेटली आएगा. नाउ विल रेफर वंस अगेन द क्वेश्चन और देखते हैं अभी इक्विटी शेयर से रिलेटेड क्या क्या है. देखो 1 April वॉज एंटायरली रिलेटेड टू डिबेंचर्स, वो हमने कर लिया, अब उसको भूल जाओ. 12 April 2013 परचेज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each in X Limited. क्लियरली स्टूडेंट्स परचेज ट्रांजैक्शन की बात हो रही है. सो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कौन सा डेट है? 12 April 2013 टू बैंक अकाउंट 1 लाख इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स. तो हम फेस वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 लाख ऑफ रुपीज 10 each है स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई बाय 10, तो फेस वैल्यू होगा 10 लाख. नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड, वेरिएबल में नहीं फाइंड करते. फॉर रुपीज 40 लाख, कॉस्ट आपको दिया 40 लाख, हो गया सिंपल सा ट्रांजैक्शन. स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट में है वो डिबेंचर्स से रिलेटेड है, हम लोग कर चुके. 15th में एक्स लिमिटेड मेड बोनस इश्यू ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. ओके, तो हमको रेशियो दिया है, तो हमको बोनस फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. सो उसका वर्किंग hold on students. Here I am making that working bonus का, so it will be working note number. अभी तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, 7 सॉरी. अच्छा आई फॉरगॉट, मैं यहाँ लिखना भूल गया स्टूडेंट्स. बाय बैलेंस, आई एम सॉरी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट वाज 31 March 14. नाउ वर्किंग नोट नंबर 8 होगा. बोनस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स. मैंने ये पेज पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है. आई डोंट वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज. सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, पेज बचाना चाहता हूँ. देयर इज नथिंग, देयर इज नो अदर रीजन. ओके, सो हेल्ड एंड बोनस पहले भी हमने किया है वर्किंग. व्हाट दे हैव सेड,
15th में X Limited made bonus issue of 3 equity shares for every 2 shares held. जिसके पास 2 शेयर है उसको कितना बोनस मिलेगा? 3. सो अभी नंबर ऑफ शेयर देखो, ये 10 लाख है फेस वैल्यू. सो 10 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख. आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी देख सकते हो, वहां पे दिया था स्टार्टिंग में ही 12 अप्रैल को परचेज 1 लाख शेयर्स. सो वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, या फेस वैल्यू 10 लाख डिवाइड बाय 10, सो वी गेट 1 लाख शेयर्स. सो 1 लाख इंटू 3/2 करोगे तो 1,50,000 आएगा. सो दिस इज द बोनस. कौन सी डेट को बात कर रहा है वो देने की? 15th में एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू. सो 15th मई को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 15th मई. सो 15th मई 2013. Please you have to copy this working to bonus account, because bonus बैंक से नहीं आता स्टूडेंट्स, है ना. सॉरी, वी डोंट हैव टू पे, बैंक से नहीं आता. वी डोंट हैव टू पे फॉर बोनस, इट इज अ गिफ्ट. इसके लिए हम टू बोनस लिखते हैं, टू बैंक नहीं. कितने शेयर्स? 1,50,000. सो विल राइट 1,50,000. वी नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड. कॉस्ट फॉर बोनस शेयर्स इज ऑलवेज निल. जाने दो उसको, निल है वो. देन 15th June Mr. Narayan sold 1,25,000 bonus shares for ₹20. शेयर्स बेचा स्टूडेंट्स कौन सी डेट को? 15th June. सो शेयर्स बेचा तो शेयर्स के अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर अभी 9 हो जाएगा. सेल की बात कर रहे हैं, कितने शेयर्स बेचा? ही सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स. सो स्टूडेंट्स 1,25,000 इंटू 10 करेंगे तो हमें फेस वैल्यू मिल जाएगा 12,50,000. नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड. वर्किंग नोट नंबर 9 पे आ गए. अगेन स्टूडेंट्स यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं. यू हैव टू कॉपी दिस वर्किंग, भूलना नहीं. वर्किंग नोट नंबर 9, प्रॉफिट लॉस इज ऑन. व्हाट इज द डेट? 15th June 2013. यहाँ पे एक्स और कम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो वी राइट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस अभी देखो उसका कितना है. हाउ मच दे हैव सेड? सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स फॉर ₹20. सो 1,25,000 बोनस शेयर्स इनटू 20, सो इट कम्स टू 25 लाख आया सेलिंग प्राइस. इतने में बेचा. कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सो वी फॉलो दैट फॉर्मूला. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. डेबिट माइनस क्रेडिट एंड डेबिट माइनस क्रेडिट. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड. स्टूडेंट हम इक्विटी शेयर डिस्कस करें. दिस इज द फेस वैल्यू. 1,25,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, सो वी गॉट 12,50,000 एज फेस वैल्यू अपॉन टोटल फेस वैल्यू का मतलब डेबिट टोटल करो. ये 10 लाख है और ये 1 लाख, सॉरी मैंने एक जीरो कम लिख दिया स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी. दिस इज 15 लाख. बोनस शेयर्स हमने कैलकुलेशन किया था, 1,50,000 शेयर्स आया था. सो 1,50,000 इंटू 10, सो इट कम्स टू 15 लाख. दिस इज 15 लाख. हाँ स्टूडेंट, मैंने एक जीरो कम लिखा था. दिस वॉज नंबर ऑफ शेयर्स, बट दिस इज फेस वैल्यू कॉलम. तो 1,50,000 को इंटू 10 किया. ओके, सो 15 लाख प्लस 10 लाख, सो टोटल विल बी 25 लाख स्टूडेंट्स. हियर टोटल विल बी डेबिट, टोटल विल बी 25 लाख. गो टू क्रेडिट साइड, इग्नोर द करंट सेल. उसके ऊपर कोई अमाउंट है क्या? नो स्टूडेंट्स, सो माइनस 0. कॉस्ट कॉलम एक ही अमाउंट है स्टूडेंट्स, टोटल करोगे तो 40 लाख. 1 2 3 4 5 6. ओके, और ये बेचा कितने में उसने? 1,25,000 में. सो अबाउट 25 लाख देयर इज नो अमाउंट, 0. सो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेलिंग प्राइस 25 लाख हमने यहाँ लिखा था, वो सेम 25 लाख लिखा है मैंने. ओके, सो 12,50,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 40 लाख, सो विल गेट द कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस आया 20 लाख. सो 25 लाख माइनस 20 लाख, अमाउंट इज 5 लाख. दिस विल बी गेन फॉर अस. ये हमारे लिए गेन है स्टूडेंट. ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड टू P&L. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट. कौन सा डेट? जिस दिन हमने बेचा, 15th June. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 9, देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट ऑफ 5 लाख. वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं. ही सोल्ड बोनस शेयर्स. अच्छा, यहां मैंने एक जीरो कम लिखा था स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 1,50,000 आया था.
उसको इंटू 10 करेंगे ना, बिकॉज दिस इज फेस वैल्यू कॉलम नॉट नंबर कॉलम, तो ये 15 लाख है. अच्छा, ही सोल्ड 1,25,000 शेयर्स एट ₹20, सो इंटू 20 करेंगे तो 25 लाख. 1,25,000 into 10, so it becomes 12,50,000 face value. 1,25,000 into 20, it becomes 25 lakh. So we got the selling price. Profit loss is on selling price 25 lakh minus cost price. Cost price नहीं दिया तो follow the formula. Okay. Face value of investment sold 12,50,000 upon total face value 10 lakh plus 15 lakh 25 lakh. Ignore current sale, above that there is no amount, 0 into cost. कॉस्ट में एक ही अमाउंट है, ये तो बाद में लिखा. ओके, सो 40 लाख, इग्नोर दिस 25 लाख, अबाउट दैट 0. सो सॉल्व दिस, वी गेट 20 लाख, सो वी गेट हियर 5 लाख. ये 5 लाख हुआ गेन. सो गेन वी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. दिस वाज 15th June. देन स्टूडेंट्स 1st October सोल्ड डिबेंचर्स डन. 1st November रिसीव्ड हाफ ईयर्स डिबेंचर इंटरेस्ट डन. फिर 1st December था ना, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. यहां मैंने लिखा था बाय इक्विटी शेयर. सो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, बाय है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. व्हाट इज डेट? 1st December था. 1st December 2013. 2 equity shares in X Limited. Okay, this was as per working note number 6. सेम नंबर 6 लिखा. अभी स्टूडेंट्स रुक जाओ, यहाँ पे स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है. ये 1,80,000 फेस वैल्यू किसका है? ये डिबेंचर्स का है कि इक्विटी शेयर्स का? सिंपल, ये डिबेंचर्स का है बिकॉज दिस इज डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 है. वेर एज स्टूडेंट्स, वेर एज इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है. यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, वहां पे डिबेंचर्स ऑफ ₹100, थर्ड लाइन में लिखा था इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. सो दोनों का फेस वैल्यू अलग है ना, तो सेम फेस वैल्यू यहाँ पे कॉपी मत कर लेना स्टूडेंट्स, और रॉन्ग हो जाएगा. ध्यान रखना, प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, अभी ये 1,80,000 क्या है स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 1,80,000 इज द फेस वैल्यू. इसको डिवाइड बाय 100 करो तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया. कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने कन्वर्ट कर लिए? 1800 कन्वर्ट किए ना स्टूडेंट्स? हाँ या ना? 1800 डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स. 1800 डिबेंचर्स आपने कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर्स में, और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 10 है ना. 1800 is the number of debentures which are converted into equity shares of rupees. I'm sorry, एक मिनट. 1st December 20% of debentures were converted. Yes students. So ध्यान रखना, ये तो हम कॉपी कर सकते हैं 1,38,900. डोंट ट्राई टू कॉपी दिस. 1200 ये तो इंटरेस्ट कॉलम है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड होता है. अब सिर्फ ये बचा ना 1,80,000, इसके बारे में खाली हमको सोचना है अभी. अच्छा, ये 1,80,000 इज द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो आपने कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर्स में. तो क्या ये सेम फेस वैल्यू में यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाकी सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, अभी डिबेंचर्स का तो फेस वैल्यू 100 है और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है. आप कुछ सेकेंड्स लो, आप खुद सोचो को कैन यू रिकॉर्ड द सेम फेस वैल्यू, येस और नो? पहले आप सोच लो एक बार स्टूडेंट्स.
So should we record the same face value? Should we record the same face value or different face value students? यहाँ पे तो डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 1,80,000 है. कॉस्ट तो सेम कॉपी करना पड़ेगा. कॉस्ट वी कांट चेंज. ये इंटरेस्ट कॉपी नहीं कर सकते स्टूडेंट बिकॉज ये इंटरेस्ट कॉलम है एंड दिस इज डिविडेंड कॉलम. सो इंटरेस्ट डिविडेंड थोड़ी मैच होता है. छोड़ दो. अब बचा फेस वैल्यू फेस कॉलम. शुड बी रिकॉर्ड द सेम और शुड बी रिकॉर्ड अ डिफरेंट आंसर स्टूडेंट. बस वो डिसाइड करना रह गया है आपको. बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया. ओके, दैट पार्ट इज इन यू कैन से होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट्स. आप खाली उतना डिसाइड करना, वो आपके लिए होमवर्क है. एंड यू कैन सेंड मी ए मैसेज कि अब यहाँ पे कितना आंसर लिखेंगे. ओके, एंड यू कैन देन टेक द टोटल्स. फिर अकाउंट क्लोज कर लेना. देयर इज नथिंग एल्स. अगेन आई रिपीट, क्या करना है आपको, ये डिसाइड करना है यहाँ फेस वैल्यू कितना लिखें. सेम 1,80,000 और सम डिफरेंट आंसर. आप डिसाइड करो. यू कैन जस्ट मैसेज मी व्हाट इज द आंसर हियर. फिर वो आंसर यहाँ पे लिखे आप टोटल तो कर सकते हो ना. वो उसमें तो कोई आपको शायद डिफिकल्टी नहीं आएगा. 31 मार्च 14 व्हाट यू विल डू बाय, मैं लिख देता हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. यहाँ पे टोटल, ये टोटल करोगे. सेम टोटल यू विल रिकॉर्ड योर फाइन बैलेंस इन फिगर. डिविडेंड में तो कुछ नहीं है, सो डिविडेंड भूल जाओ. ओके, देन ये टोटल तो कर सकते हैं. चलो ये मैं करके दे देता हूँ आपको. ये आपके लिए दिस पार्ट यू डिसाइड स्टूडेंट्स. 40 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,38,900. So this total is 46 lakh 38,900. So 38,900 minus 25 लाख कर देंगे तो बैलेंस फिगर 21,38,900. तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके लिए फाइन कर दिया. ये तो सिंपल है क्योंकि इजी है. इजी पार्ट मैंने किया है स्टूडेंट. एज टू बी फेयर इजी पार्ट जो है मैंने कर लिया. आपसे मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि हमने इसका सेकेंड इफेक्ट दिया ना. यहाँ पे ये बाय था तो यहाँ पे 2 होगा डेफिनेटली ऑपोजिट इफेक्ट. तो कॉस्ट सेम कॉपी करना है, उसमें कोई चेंज नहीं. ये इंटरेस्ट है, ये डिविडेंड कॉलम है, तो इंटरेस्ट डिविडेंड कॉलम में नहीं आ सकता. नाउ मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप 1,80,000 सेम लिखें या कोई डिफरेंट आंसर है. ओके, वो आंसर आप डिसाइड करो. ये टोटल यहाँ पे लिखना, सेम टोटल ईयर एंड यू विल गेट द बैलेंस फिगर एंड देयर इज नथिंग एल्स स्टूडेंट्स. और आपको कुछ नहीं करना है. सो प्लीज इतना तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. वंस अगेन मैं पूरा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन किया मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली स्टूडेंट्स. ईयर जो हमको उन्होंने डिटेल्स दी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हमको डिटेल्स दिया है 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट का. एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है और एक इक्विटी शेयर्स है वेरिएबल इनकम. तो इसके लिए मैंने 2 सेपरेट अकाउंट बनाया. फिक्स्ड इनकम 8% डिबेंचर और वेरिएबल इनकम इक्विटी शेयर्स. तो फिक्स्ड इनकम के लिए हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं. पहले मैंने टाइमलाइन बनाया, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए. अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट का मिला था वो भी टाइमलाइन पे इंडिकेट कर दिया. देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. पहला परचेज था, फिर इंटरेस्ट आया, फिर सेल आया, देन अगेन इंटरेस्ट आया, देन कन्वर्जन. कन्वर्जन का मतलब क्या है? दे हैव सेड कि 1 दिसंबर 20% ऑफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो कैसे करना है स्टूडेंट? देखो मैंने यहाँ लिखा भी है वर्किंग कन्वर्जन. यहाँ पे क्या, सॉरी, वर्किंग नोट नंबर 6. 12 लाख, इसमें से 3 लाख तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं दिसंबर से पहले. सो 12 लाख माइनस 3 लाख इज 9 लाख. सो 9 लाख इंटू 20% वी गॉट 1,80,000. फिर ये 1,80,000 का इंटरेस्ट फाइंड किया ईयर स्टूडेंट्स. 1,80,000 इंटू 8% इंटू 1/12. लास्ट इंटरेस्ट नवंबर में मिला था. नवंबर टिल दिसंबर इज 1 मंथ. सो वी गॉट दिस आंसर 1200. ये 1,38,900 कैसा आया? ये तो बाद में लिखा था. नहीं सॉरी, ये 1 अक्टूबर. हाँ, सो 1 दिसंबर को कन्वर्जन कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर का भी ट्रांजैक्शन काउंट होगा. 9,26,000 प्लस 11,500 9,37,500. ये मैंने बाद में लिखा है स्टूडेंट्स. माइनस 2,43,000. सो माइनस 2,43,000 ये दोनों को माइनस करो. Then multiply with 20%. You will get this answer 1,38,900. So we recorded here. Okay. इसका सेकेंड इफेक्ट इक्विटी शेयर्स में आएगा. Then we close the account. जैसा नॉर्मली फिक्स इनकम सिक्योर का करते थे ना, वैसे ही मैंने नॉर्मली अकाउंट क्लोज किया है. मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो वी फाउंड बैलेंसिंग फिगर. फिर इक्विटी शेयर्स पे आ जाओ. वो परचेज से स्टार्ट हो रहा है. बोनस यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया था स्टूडेंट्स, आप लिखना नहीं भूलना प्लीज. ये बोनस का वर्किंग 2:3. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 1 लाख था. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 1,50,000 शेयर्स है वो. उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, वी गेट फेस वैल्यू 15 लाख. दैट वी रिकॉर्डेड. कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स ऑलवेज निल. फिर उन्होंने 15 जून को कहा है कि कुछ शेयर्स बेचा. 1,25,000 बोनस शेयर्स. सो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सो वी गॉट फेस वैल्यू. 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 20, वी गॉट द अमाउंट. सो आई रिकॉर्डेड हियर. देन मैंने प्रॉफिट लॉस यहाँ पे फाइंड किया फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसा नॉर्मली करते थे पहला भी. वो कुछ नया नहीं है. देन वी गॉट प्रॉफिट. आई रिकॉर्डेड हियर 5 लाख.
फिर स्टूडेंट्स का सेकेंड इफेक्ट दिया है, ये कॉस्ट यहाँ पे कॉपी किया, ये इंटरेस्ट कॉलम है, ये डिविडेंड कॉलम है, तो ये तो कॉपी नहीं होगा, भूल जाओ। अभी अब सिर्फ इसके बारे में आपको सोचना है, क्या 1,80,000 लिखा जाएगा या सम डिफरेंट आंसर, वट एवर द आंसर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, वो मैं आंसर यहाँ लिखना, टोटल करना, यहाँ पे वो टोटल एंड बैलेंसिंग फिगर, बाकी मैंने पूरा किया। आपको सिर्फ ये डिसाइड करके एक कॉलम का टोटल करना है, नथिंग एल्स। ओके, सो आज हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में हमको 2 अकाउंट बनाने पड़े। ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और स्पेक्ट्रम और सत्यम, 2 डिफरेंट कंपनी का इक्विटी शेयर्स था, इसके लिए 2 अकाउंट बनाया। इन दिस केस सेम कंपनी का डिबेंचर है और इक्विटी शेयर है, बट एक फिक्स इनकम है, एक वेरिएबल इनकम है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।